Good afternoon. Okay, good afternoon, everyone. So just a second. So now we have come to the end of classical physics. Uh, Not completely, but yes, most of the topics have been covered. And this is the last chapter, technically the last chapter according to the course which we are going to study as per class till class 10 syllabus. There are more chapters. Gravitation is thoda bahut aur detail mein hai. Then light, I think Aryan will teach light, and or we can have a collaboration wala class ekdam. We can both be discussing on the topic of light. But classical physics, this is the end, and so we'll go slow, a little bit slow, so as to we can see some questions and then work on these things. Rest, you may please see the previous year questions. What are the questions which are arising, and you can ask me those questions. Even I'll try to solve after the class, not right now. Today, abhi keval we'll be doing this only, and then we can later on move on to light, which both of us can take. And देखते हैं मॉडर्न फिजिक्स में देयर आर मेनी मोर थिंग्स, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं. क्लासिकल फिजिक्स से क्वेश्चंस बहुत रेयर आते हैं. 2015 2016, apart from that I haven't seen a question from classical physics for the last 2 years, two to three, or I must have missed it. I have not seen the paper thoroughly. So this is the last chapter of this whole classical physics syllabus, as I am able to recall. Just let me check once again if I'm missing out. Okay, work energy. Yes, this is the last chapter. Motion, measurement, force, pressure, friction, gravitation. We have all done this. जिधर से क्वेश्चन आते हैं, we have covered those things. Basic concepts we have covered. कभी दिक्कत नहीं आएगी उसमें. Now we'll be starting with something called as work. Energy and power, just forget these two terms, or you might not even, tab bhi chalega. But three terms, work, energy and power, we'll be studying all three together. So let us begin with the chapter, and we can wait for just 2 minutes more so that all people may join, and then we can start with this chapter. So let us begin now. Okay, 2:05. It's already 2:05. So work, what is work? Okay. So first we have to come to the definition part of this thing. What is work? वर्क हिंदी में इसको शायद ऐसे इन जनरल टर्म्स हम लोग कहते हैं काम, काम करना या कार्य कुछ करना. दैट इज वर्क. सो वर्क इज डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन. ओके, वर्क इज डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन. अगर कोई फोर्स है जो कि कोई मोशन प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज नोन एज वर्क. नाउ बिफोर कमिंग टू the physical aspect of this thing, let me ask you one question, that is कि क्या ये फिजिक्स वाला वर्क एंड जो जनरल डे टू डे लाइफ में द वर्क विच वी डू, आर बोथ ऑफ दीज सेम? जो वर्क हम लोग बोलते हैं कि आज मैंने 6 घंटा काम किया, 6 घंटा आज मैंने पॉलिटी पे काम किया या फिर इस पे काम किया, सो इज दैट सेम? नो, इट इज नॉट, राइट? ठीक है. इसका एक और एग्जांपल विच आई रिमेंबर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड ऑल ऑफ यू that example. So our respected mentors, ET ma'am, respected Oza sir, respected Chaur sir, so these
people, they work their whole day. Okay, सुबह से sir, he goes to gym, he runs, he goes to office, he does his work, then he comes back, he teaches us. ठीक. So is he actually doing any work? Is he actually doing any contribution to this kind of a work, physical work? Sorry, not physical work, but works according to physics. ठीक. चलो कंसिडर करते हैं a time frame we are taking. Okay, now we are considering a time frame. Say sir is teaching us, the class starts at 7 and he is teaching us till 8:30. 1 hour 30 minutes he is teaching us. Time frame एक लिया है, एक basic time frame, so he is teaching us. Now can we say that he has done a lot of work for the day? One example can be this, and the second time frame can be that this is a more apt one. Let's take this time frame, the second one which I am telling you right now. Sir is sitting in his office. Respected Oja sir is sitting in his office. Virendra sir is sitting in his office and he is doing his work. Whatever it's his daily routine looks like, I'm not aware of that, but yes, he's doing some work in his office. Okay, and then the employees, they're also doing some work. But can we say if they have done some work in terms of physics? Can we say that they are doing some work in terms of physics? ऐसे तो we say कि सर बहुत काम करते हैं, सर हम लोग को पढ़ाते हैं, सर goes to ये ऑफिस, वहाँ पे काम करते हैं, but in terms of physics he is doing zero work while sitting in his office. I'm not talking about when he's moving around. While sitting, okay, while sitting he is not doing any work in terms of physics. Similarly, when we are sitting, when there is no motion, that means according to physics we are not doing any work. Physics says that work is when force produces motion. If force is being applied, and I'll tell you this later. Okay, this I'll tell you later. So work is done when force produces motion. ठीक. So according to physics, none of us are working. If we are reading, if we are writing, we are not writing. Yeah, not even in writing also, because there is no displacement while you're writing. Okay, तो in terms of physics नहीं कर रहे हैं, बट इन जनरल कहते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं इंसान, एंड आज इतना घंटा काम किया, आज ये किया, आज वो किया. बट फिजिक्स speaks a different language. So physics says जब फोर्स लगेगा, मोशन होगा, तो ही वर्क डन होगा, वरना वर्क डन नहीं होगा. ठीक. नाउ it depends upon two factors. First is force, second is displacement. ठीक. अब यहाँ पे कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज आने वाली हैं एंड कुछ कुछ चीजें भी आने वाली हैं. आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू. फर्स्टली आते हैं फिर इस वर्क डन के दो कंपोनेंट्स पे, एकदम बेसिक कंपोनेंट्स, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट. ठीक. तो अब सबसे पहला चीज तो दिमाग में ये आता है कि ये क्वेश्चन भी यहाँ पे पुट इट, वर्क डन स्केलर और वेक्टर. ठीक है. those who know they can answer this, but for those who are not aware of this thing, the concept which I'm not naming right now, I'll be naming it, but let's take a guess कि work done scalar होना चाहिए या vector. There are two vectors involved in its formula, force, displacement, both are vectors. Then what should be the work done, scalar or vector? Please take a guess and try to answer. Shubham has written scalar. Okay. Why scalar? Why not vector? Force वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, देन व्हाई इज वर्क स्केलर? व्हाई नॉट वेक्टर? Scalar product. Yes, exactly. Google has given the answer, scalar product. ठीक. Dot product, scalar product, whatever you may call it as. ठीक. तो maybe the product of two vector. Yes, आगे. B scalar.
you wanted to write this, right? Okay, fine. So अभी क्या है, see, थोड़ा different है, ठीक है? Physics में things are not what they look like because they are dependent on certain theories, certain assumptions, certain hypotheses. So everything we have to assume and then take, and there are methods which are used to calculate the multiplication of vectors, their additions and all, which we'll be studying. No, we'll not be studying that because that is not the part of our curriculum. So we'll not be studying that. But yes, a brief I'll be giving you. Ki why not work is vector. So firstly, so now let us see. So work done is equals, just a second. Okay, so work done is equals to force into displacement. ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, बट ये स्केलर है, ठीक है? तो इसका रीजन है कि जब विल बी स्टडिंग अबाउट दिस, मतलब आई विल टेल यू लेटर सम अदर डे कि होता क्या एक्चुअली। द थिंग इज, ये ना यहाँ पे दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट होता है एक चीज, ठीक है? डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं उसको। सो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, बहुत लेमन टर्म्स में I'm telling you, dot product of two vectors is their magnitude into the cos of the angle between them, mod of f mod of s into the cosine trigonometry everyone knows, or even if you don't then you'll get to know it in your maths class, but एक कोसाइन होता है ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में नहीं जाते हैं, बस जस्ट रिमेंबर दिस कि कॉस, जिसको नहीं पता वो मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, बट अभी के लिए जस्ट सी कि कॉस थीटा, ठीक है? कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। I'll clear it and then I'll explain you with an example. For example, this is the force, this is the displacement, this is the force, y axis, x axis पे this is the displacement, this is your force on your y axis. The angle between them, the angle between two vectors, that is theta, and cosine yani cos of that as taken in the dot product. So mod of f mod of s का cos theta, that is your work done, ठीक है? वर्क डन इन, मतलब डॉट प्रोडक्ट ही लेते हैं, ठीक? 9th क्लास तक ये नहीं पढ़ाया गया किसी को भी, बट यू शुड जस्ट नो दिस थिंग कि डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हमेशा टू वेक्टर्स का। सो दैट इज व्हाट हैपेंस, एंड मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, ओके? magnitude of those two vectors we are taking, okay? We're not taking the vectors as it is, we're taking the magnitude of those vectors. So अभी उसको बताने के लिए we'll have to go in further detail कि मैग्नीट्यूड कैसे, फिर there are things I cap, J cap, K cap, ठीक है? These are the things which we'll have to study, बट ठीक है अभी बेसिक वी जस्ट वांट टू फोकस ऑन द बेसिक, क्योंकि आज तक क्वेश्चंस ऐसे आए भी नहीं है रिगार्डिंग, मतलब ये क्लास 11th की स्टडीज में होता है, सो आज तक ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं, सो वी डोंट नीड टू फोकस ऑन दिस क्योंकि इस बार भी नहीं आएंगे, सिलेबस कन्फाइंड है, ठीक? तो इसीलिए वर्क डन जो होता है वो स्केलर आता है, क्योंकि इसका जो इसको जैसे बनाया गया है, जिधर से ये आया है, द सोर्स ऑफ वर्क डन, सोर्स जो है इस वर्क डन के फॉर्मूले का, दैट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. सो स्केलर प्रोडक्ट is a scientific method which has been devised by some scientist, I don't know his name. So वहां से वो चीज आई है, एंड therefore work done is scalar not vector, ओके? वेक्टर, दो वेक्टर्स का जरूरी नहीं है कि दो वेक्टर्स का वो प्रोडक्ट वेक्टर ही है, that is not same in this case when we talk of physics. तो ये स्केलर आता है, ठीक? एंड एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पे, जब इस चीज को भूल जाते हैं कुछ देर के लिए, इसको भूल जाते हैं कि देयर इज समथिंग नोन एज डॉट प्रोडक्ट, लेट्स जस्ट फॉरगेट दिस। सिंपल एकदम बेसिक टर्म्स में सपोज करते हैं कि वी ऑल आर स्टडिंग इन क्लास 9, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, वॉट एवर, वी डोंट नो एनीथिंग, ओके? जस्ट थिंक ऑफ वन थिंग, ठीक है? वर्क डन क्या होता है, ठीक? लाइक कैन यू जस्ट इमेजिन दैट
काम करने का कोई डायरेक्शन होता है? जस्ट थिंक ऑफ दिस। क्या काम करने का कोई डायरेक्शन होता है क्या? मतलब फोर्स का डायरेक्शन होता है, ओके, बट काम कर रहे हो आप तो किसी डायरेक्शन में नहीं काम करते हो, ठीक? कोई डायरेक्शन नहीं है काम करने का कि मैंने आज क्या कहते हैं, when you come to this technical language, so you the question will be like this, that a man is moving towards this direction and he is applying this force, but the thing is he is moving towards this direction, that is the displacement which the question is saying. He is applying force towards this certain direction, that is the force which the question is saying, but work done, that is not, that is no direction, because work done is basically energy. So do you think energy has a direction when the energy is dissipated through your body? So is there any direction in which it goes? ऐसा होता है कि आप कहीं मतलब एनर्जी जो बॉडी से निकल रही है, दैट इज गोइंग सम इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन? डज इट एवर हैपेंस? इट नेवर हैपेंस, ठीक? ओके, तो एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वर्क डन भी क्या है? एनर्जी ही है। ओके, बेसिकली एनर्जी ही है जो आप स्पेंड कर रहे हो, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, वर्क डन एनर्जी का रिलेशन क्या होता है। ओके, simply we can say work is independent of direction, so scalar, हाँ सेम थिंग है, वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। हाँ, दैट तो टेक्निकली द स्टेटमेंट इटसेल्फ सेज कि इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन है, ठीक है। तो एनर्जी के टर्म्स में देखा जाए अगर, तो क्या एनर्जी का कोई डायरेक्शन है? कोई डायरेक्शन नहीं है। सो हाउ कैन वर्क डन बी given a direction, a specific direction? So yes, there is no direction for work done. Now let us see a few more things. तो सबसे पहली बात तो अभी वर्क डन कुछ कुछ आई हैव पॉइंट पिक्ड आउट सम स्टेटमेंट, सम रैंडम साइट्स। तो या ठीक है, तो वर्क डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन depends on two factors, force and displacement. Work done scalar or vector, this we have answered. Unit of work, ठीक, यूनिट ऑफ वर्क, तो वर्क जो कॉन्सेप्ट है वो जूल ने दिया था, एक साइंटिस्ट थे, तो हम लोग इसको न्यूटन मीटर लिखते हैं या जूल लिखते हैं, ठीक है। ये दिस इज नॉट न्यूटन मीटर पर जूल, दिस इज और न्यूटन मीटर और जूल, यू कैन राइट बोथ, न्यूटन मीटर और जूल। और न्यूटन मीटर क्यों? फोर्स का क्या? न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का क्या? मीटर, न्यूटन इनटू मीटर, और वी कैन से एज जूल, क्योंकि जूल ने ही वर्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक। अब कभी कभार ऐसा आता है, व्हाट इज 1 जूल ऑफ वर्क, ठीक है। सो 1 जूल ऑफ वर्क इज नथिंग बट व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर, दैट इज 1 जूल ऑफ वर्क। बहुत बेसिक यूनिट मेथड्स में इसकी बात करनी है कि अगर पूछ रहा है 1 जूल ऑफ वर्क क्या है, then this is 1 joule of work. 1 Newton displaces the body through 1 meter, that is 1 joule of work, okay, or 1 Newton meter of work. And I have written this here as well, that work is nothing but energy generated. The energy which is being generated, that is work, that is stored. अच्छा, ये आगे आएगा एनर्जी पावर में, ये नहीं बताते हैं अभी क्या है, अभी केवल वर्क पे फोकस करते हैं, ठीक। नाउ कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर हो गया कि फिजिक्स वाले वर्क में और रैंडम जो मतलब वर्क हो रहा है उसमें बहुत अंतर है, लेकिन वो भी एक वर्क है, ठीक है। अगर यू कंसिडर दैट यू आर मूविंग थ्रू सम प्लेस, यू आर मूविंग एंड यू आर हैविंग सम वेट ऑन योर हैंड्स, ठीक, तो वो भी वर्क है, ठीक है, वो भी वर्क ही है एक तरीका। लेकिन अच्छा चलो एक एग्जांपल इसका जरा प्लीज, someone if someone can please tell me, I want to ask this question. जिसको अच्छा ट्रिग्नोमेट्री, ये कॉस कॉस वाला सबको पता ही होगा बेसिकली, बहुत टफ चीज नहीं, कॉस एंड साइन ये सब। तो ट्रिग्नोमेट्री होती है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ट्राइंगल के साइड्स और उनके एंगल्स के बीच का जो एक रिलेशन होता है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में जैसे कि सही ट्राइंगल है तो ये अगर ये थीटा एंगल है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस एक होता है, हाइपोटेन्यूस इसमें नहीं है, चलो राइट एंगल ट्राइंगल की बात होगी, सॉरी मैं राइट एंगल नहीं बनाया, ये थीटा एंगल, तो बेस अपॉन इसकी हाइपोटेन्यूस, सॉरी, ठीक, तो ये कॉस थीटा। तो ये हम लोग को ऐसा डायग्राम नहीं आएगा
बट ये जानना चाहिए कि कॉस थीटा क्या है। तो कॉस लेते हैं उस एंगल का जो दो वेक्टर्स के बीच में होता है, यानी कि फोर्स मान लो इसको और डिस्प्लेसमेंट मान लो। ठीक, इसको क्लियर कर देते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन है, दिस इज यू, एनी वन ऑफ यू, ठीक, यू आर वॉकिंग ऑन द रोड covering displacement s. Tell me whether you have done some work or not, and if you have done, then what is the amount of that work, what is the magnitude of that work, because work has only magnitude, no direction. And say the distance is 2 meter, and your mass is 10, 40, chalo. Now tell the work done. What should be the work done in this scenario in which this person is moving along the ground and is covering the distance of 2 meter? कोई है अभी क्लास में? Only Shubham is there, as always. Okay, Vipendra ji. Okay, okay, fine. Then please answer if any one of you know. Then it would be very great to see what answer do you have. I've given you the mass, I've given you the distance, displacement. But in dot product, it comes to displacement ka magnitude only. So yeah, it can be called as displacement only. Okay, okay. Many of you are there. Then please answer this one so that I can know कि कुछ समझ में आया है. What is the displacement in this case? What is the work done in this case? Where is Shruti? She always used to answer, right? One answer I've got a 0, two answers are 0. Okay. Rest. Zero. Mayank has said 0. Astik has said 0. I think yes. Shubham has said can't be 0. Any reason for that, Shubham? Any particular reason that you might be having in your mind? Then please do answer in the chat so that everyone can know that why it cannot be 0. Because the reason Astik has given, I think that is the correct reason. So if you have some other reasoning behind, then please, you may please proceed. Okay. Meanwhile, you answer if you have any reason, or it's fine. I'll explain because the reason Astik has written that is completely fine. Motion is in perpendicular direction of force. बिल्कुल सही है. ठीक. Now you might like, not you, people who do not know this, ठीक, might have thought कि अरे displacement दिया है but force किधर है? ठीक, तो force क्या है? Force of gravity. Your weight is also a force, okay, which gravity is exerting upon you. We have studied this in gravitation. So force नीचे लग रहा है, displacement आगे हो रहा है. Now see this thing. Let us see the FBD of FBD. सबको याद है? Of this particular person. Let us see the FBD of this person who is walking. So one force below, that is his own weight, displacement in this direction. Okay, displacement इधर है, force इधर है, angle हो गया 90 degree. And we all must know this
cos 90 is equals to what? 0. So if cos 90 is 0, then when we find out the dot product for this thing, it becomes f into s cos of 90, and anything into 0 automatically becomes 0. So hence proved that we are not doing any work. Okay, basically we are not doing any kind of work. Are you getting this? Shubham, are you able to understand this, or shall I repeat? Yes, exactly. No, 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 not cos 0, not cos 0. See the direction, see the angle, see the angle, that is 90°. The angle is 90°. Okay, cos 0 is that no angle between both of them. That is when you take this case. Okay, you take this case. Man, not a man, let us say a truck. Okay, or a cart wheel kind of a thing. इसको इधर धक्का दिया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, इधर एंगल 0 है क्योंकि दीज आर कोलिनियर एंड कोलिनियर हैव द सेम एंगल, एक ही लाइन में है ना, यहीं पर फोर्स है, यहीं पर डिस्प्लेसमेंट है, तो देयर इज नो एंगल बिटवीन देम. देन कम्स योर cos 0, सो इट बिकम्स 1. cos 90 इज 0. ठीक है, cos 90 इज 0, तो उस केस में व्हाट हैपेंस, वर्क डन बिकम 0. ओके फाइन, यू हैव गॉट इट, ग्रेट. ओके, ठीक है. So acha, one more question on this. Let us mix up some concepts. Now I'm saying, okay, ये हमको समझ में आ गया. How can I mix it? It just came to my mind. I'll tell you. Okay. So this man is moving, same man moving once again. Displacement in this direction. Or can we do it another way? Just a second now. चलो पहले ये ट्राई करते हैं, फिर वो भी ट्राई करेंगे. एक एक दो केस बन सकते हैं इधर. Trying to mix up some concept. Let's see if I get these things right. Physics वाले please, all the physics optional people, बताना आप लोग if I'm going wrong somewhere. ठीक है. तो now his weight is here. Okay, we all know this. Now he is moving. So there is a frictional force acting here, and also his weight is acting here. Also his weight is acting. Now I'm not giving the data here. Just tell me whether the work done would be 0 or not. Just tell me whether the work done would be 0 or non-zero. I just want to know this thing. There is some frictional force, then is weight, and this is the displacement. This might, like, this is not difficult, but yes, I haven't taught you the resultant of two vectors, have I? I haven't talked about this, right? The resultant of two vectors. Reply please in the chat. Have I taught you this thing, resultant of two vectors? I guess I haven't. Yes, yes, you're right. I haven't taught you this thing, but ठीक है, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं. Resultant of two vectors कर लेना चाहिए, चलो बता देते हैं. Actually ठीक है, फिर उसमें जाना पड़ेगा आगे. ठीक है, अभी के लिए बट इतना जान लो कि यहाँ पे रिजल्ट एक्चुअली क्या होता है. सी, आई एम नॉट गोइंग टू रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, डीप में नहीं जाते हैं, उस पर फिर क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे. ठीक, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स में क्या होगा ना, कि इधर फोर्स है, इधर फ्रिक्शन है, इधर इसका वेट है. ठीक, तो इसका ना कुछ रिजल्टेंट आएगा विच वुड बी द डायगोनल. जब हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर ट्रांजिशंस होते हैं कुछ, सो हम लोग वैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे मान लिया, इसको ऐसे कर लिया,
तो इसका जो डायगोनल होता है ना, फिर राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है ये। सो वी फाइंड आउट दिस रिजल्टेंट। ठीक, तो अभी ये रिजल्टेंट है, दैट मीन्स यू कैन सी द डायरेक्शन, द एंगल बिटवीन, ये रिजल्टेंट होगा। जस्ट नो दिस थिंग दैट दिस वुड बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, फ्रिक्शन एंड हिज वेट। इसका कुछ रिजल्टेंट आएगा जो कि इस डायरेक्शन में आएगा। आई शो अनदर डायग्राम। तो इसका डायरेक्शन, इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक, एंड ये जा रहा है इस डायरेक्शन में। सो नाउ विल टेक दिस एंगल, दिस वुड बी द थीटा एंगल। सो इतना तो दिख रहा है कि थीटा 90 नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 90 ऑप्ट्यूज से ज्यादा है। ठीक, मतलब वो 90 से ज्यादा है। ठीक, तो मतलब कि कॉस 90 तो नहीं हो रहा है इधर, कॉस 90 प्लस हो रहा है समथिंग। सो जीरो तो नहीं आएगा इधर। ठीक, कॉस 90 नहीं हो रहा है। तो फॉर नाउ वी कैन से कि हाँ, इस केस में कुछ तो वर्क डन होगा। नेगेटिव पॉजिटिव वी डोंट नो, बट कुछ वर्क डन होगा इस केस में। ओके, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि हाँ, वर्क डन कुछ ना कुछ हुआ होगा डेफिनेटली, क्योंकि 90 डिग्री एंगल नहीं है, इट्स मोर देन 90। ठीक है, सो आई होप अभी के लिए इतना क्लियर है। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, वो वेक्टर्स की हम लोग जब सपोज अभी जैसे कि टाइम है हम लोग के पास अभी भी, तो वेक्टर्स के जब एडवांस क्लासेस करेंगे ना, थोड़ा सा और उसमें डीप में जा सकते हैं, फिर बताएंगे कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है। बेसिकली आप वो बता ही दिया है मैंने क्या होता है वेक्टर को, जो हम लोग ट्रांजिट करते हैं उसी प्लेन में, को प्लेन में, उस को प्लेनर होता है सब कुछ, तो वहीं पर ट्रांजिशन करते हैं तो एक रिजल्टेंट वेक्टर निकलता है जो कि डायगोनल होता है उस आपके स्क्वायर का। ठीक, तो यही रिजल्टेंट होता है, और ये थीटा एंगल है। तो बस यहाँ पे मतलब इस समय के लिए अभी हमने बोल सकते हैं कि हाँ, ये जीरो तो नहीं होगा। ठीक, तो एक तो ये था क्वेश्चन, एंड एक और था फ्रिक्शन वाला, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन है, तो वी डोंट नीड टू डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल। ये क्लियर है सबको? प्लीज रिप्लाई इन द चैट, देन वी कैन प्रोसीड। थोड़ा सा ये कुछ कहीं कहीं से निकाला है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। ओके फाइन। Now, these are some definitions. So, the scientific definition of work is different in many ways from its everyday meaning. So, ये we have already done. ये अलग वर्क होता है जो हम लोग करते हैं, ये अलग वर्क है फिजिक्स में। The definition of work in physics reveals its relationship to energy. Whenever work is done, energy is transferred. So, I have told you this thing also कि energy is transferred. तो इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि एक जनरेटर है कोई, ठीक है, that is also creating energy. We are also dissipating some energy while we are doing something, but that energy has no direction. Energy is all into universe. Okay, it's all in our atmosphere. We can just, we cannot touch energy, we can just feel it, that there is something known as energy. Direction तो उसका नहीं होगा। ठीक, for a work to be done in scientific sense, a force must be exerted and there must be a displacement in the direction of the force. With this said, we can say that work is the product of displacement of the force in the direction of displacement and the magnitude of this displacement. तो F डॉट D का cos थीटा वो हम लोग लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट में अपने आप cos थीटा आ जाता है। तो दिस इज द वर्क डन, दिस इज द फोर्स, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये भी क्लियर हो गया सबको अभी कि क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पे, कि फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में एक एंगल होगा, डिपेंड करता है, वो 90 डिग्री एंगल है तो वर्क डन जीरो होगा, वो थोड़ा सा कम है तो कुछ और होगा, एकदम ऑपोजिट है तो कुछ और होगा। क्लियर? ठीक है, जैसे कि ये दो वेक्टर्स, सपोज दीज आर द टू वेक्टर्स, नाउ दिस इज 90 डिग्री, दिस इज सम अदर एंगल, दिस इज 180, दिस देन 270, 360, दिस इज द वे वी प्रोसीड, एंड उसके हिसाब से वी कैन, तो उसके लिए कोसाइन टेबल, यू कैन रिफर टू द कोसाइन टेबल कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ कोसाइन इन डिफरेंट एंगल्स एट डिफरेंट एंगल्स, देन यू कैन इजीली बी, you will be easily able to solve the question. So now let us move, थोड़ा सा आज कुछ कुछ डाला है स्लाइड में, ये दिख रहा है दोनों स्लाइड्स? ठीक, I try to make it a fun study so that it gets stored into the eidetic memory, because this is how I try to learn things, by making questions and by images. Okay, so these two images you all are able to see right now. So first, let's come to this first iconic movie. The legend is right in front of you. You all know him. Okay, we call him as Big B, Amitabh Bachchan ji. Now tell me, the whole movie
in the whole movie, I haven't seen the whole movie, to be very honest. Okay, but I can say that he's in the role of a coolie. Okay, he's in the role of a coolie. Now, but the thing is, people say यार यार अमिताभ बच्चन ने बहुत बहुत अच्छा काम किया इस मूवी में, but ideally he hasn't done any work in this whole movie. Am I right or am I wrong? In terms of physics, just tell me. He has done any work? He hasn't done any work. The whole time he has been carrying loads on his head and moving in a specific direction. Okay. The force was always at 90 degrees to his displacement. He hasn't done any work in this whole movie. But लोग फिर भी तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छा काम किया इस मूवी में, इतनी अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छा काम किया है. बट फिजिक्स तो कहती है नहीं, कुछ काम ही नहीं किया आपने. आप होंगे अमिताभ बच्चन, बट हमारी फिजिक्स में, हम न्यूटन जी ने तो कहा है और साइंटिस्ट ने बोला है कि नहीं, फोर्स आपने कोई काम नहीं किया है. जब तक आपका 90 डिग्री पे है, फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट, कोई काम नहीं किया है आपने. ठीक, जीरो वर्क. ठीक है. सो चलो अब इस पे आते हैं, सेकंड इमेज पे आते हैं. तो यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू जस्ट एक्सप्लेन यू दिस वन स्टेटमेंट विच यू हैव रेड ऑन द प्रीवियस स्लाइड. ठीक है. So you see this scene, one more legendary iconic movie. Everyone knows it. Name it on the chat. थोड़ा सा आप लोग भी एनर्जी उधर से ट्रांसफर करिए, तो एक बैलेंस बना रहेगा. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, विच विल बी स्टडिंग नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास. हेरा फेरी. ओके, हेरा फेरी. ओके फाइन. ओके. सो अभी इसका नाम क्या होता था यार, पीछे वाले का नाम बताओ, पीछे वाले का यार. आई एम फॉरगेटिंग. नहीं नहीं नहीं, राजू नहीं. श्याम. श्याम या श्याम एंड बाबूराव. ठीक है. सो यू आर सेइंग कि अभी तक व्हाट वाज ही डूइंग, वो उनको ऐसे ठेले पे बैठा के ही वाज पुशिंग हिम. ठीक है. नाउ इन द फर्स्ट इमेज यू कैन सी हिम पुशिंग हिम. घनश्याम नहीं, नहीं स्मिता, गो वॉच इट वंस अगेन. श्याम नाम होता है इसका शायद. ठीक है. ओके, नाम से हट जाते हैं अभी. तो अभी he is pushing in this first scene. You can see he is pushing him. Now let us make the FBD of this whole picture. Okay, then we'll get it more clearly. Just try to remember these three scenes, this and this, 1 2 and 3, and then we'll make the FBD. ठीक है. एक बार ढंग ढंग से देख लो सब लोग, then we'll come to the FBD part. देख लिया सब लोगों ने? ठीक है, तीन चीजें हो रही हैं. Now I'll tell you. तो चलो देखते हैं फर्स्ट सीन में क्या हो रहा है. ठीक, फर्स्ट सीन. ठीक. तो यहाँ पे FBD बनाते हैं हम लोग बाबू राव की, who is moving on a ठेला. ओके. ओके फाइन. सो श्याम, दिस इज श्याम. ओके फाइन. नाउ ही इज पुशिंग. फाइन. ड्राइंग पे कोई नहीं हंसेगा. ठीक है, बस कॉन्सेप्ट समझना है सबको. फोर्स इस डायरेक्शन में, ध्यान से. ठीक है. एक बार यहाँ मैं रफ में यहाँ दिखा रहा हूँ, देन आई मेक द FBD. डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में. ओके, दिख गया सबको? FBD सबको याद है ना? पता चला मैं, FBD याद है ना? फ्री बॉडी डायग्राम which only tells the forces which are acting on you on a particular body. फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इधर. ठीक. बाबू राव, श्याम. ठीक, इसको क्लियर किया. अब चलो देखते हैं FBD बाबू राव की. फोर्स बाबू राव पे लगा इस तरफ, मतलब ठेले पे फोर्स लगा. डिस्प्लेसमेंट भी हुआ इस तरफ. तो पहले तो एंगल बताओ दोनों के बीच में. कॉस ऑफ व्हाट? थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे?
थीटा इज अ वेरिएबल, ओके। थीटा कुछ ऐसा वो नहीं है इन मैथमेटिक्स, यू ऑल नो स्मिता हैज taught you or she will teach you if she hasn't yet, ठीक है। तो थीटा की क्या वैल्यू होगी, फोर्स भी वहीं पर है, डिस्प्लेसमेंट भी वहीं पर है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, अभी बताया था, जीरो। तो कॉस जीरो क्या होता है, कॉस जीरो क्या होता है, वन। तो मतलब कि ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे वर्क डन जीरो नहीं होगा, थीटा की वैल्यू जीरो होगी बट वर्क डन जीरो नहीं होगा। ठीक, ये समझ में आ गया सबको। अब सेकंड सीन में क्या होता है, देख लिया तो सबने क्या हुआ था उधर। सेकंड सीन में ये उसी साइड पे कर दूं क्या, एक मिनट। सेकंड सीन में क्या होता है कि श्याम गोज अवे, वो इधर चला जाता है एंड बाबू राव इज अनअवेयर दैट ही हैज लेफ्ट हिम टू गो फॉरवर्ड ऑन हिज ओन। ठीक, बाबू राव को बिल्कुल पता नहीं है, ठीक है, एंड ये इधर चला गया। बट श्याम हैज ट्रांसफर्ड हिज एनर्जी टू दिस ठेला बाय डूइंग सम वर्क। ठीक, श्याम वॉज इस एनर्जी, अभी क्या हुआ, श्याम वॉज पुशिंग इट, राइट, श्याम उसको पुश कर रहा था, ठीक है। So he has transferred some of his energy to this thela. That means now this thela won't stop until and unless it overcomes the friction or there is some barrier which might stop it. ठीक, so अब यहाँ पे work done जो हुआ वो, which I'm trying to relate, work done is nothing but energy transferred। ठीक, तो अब कुछ एनर्जी आ चुकी है इस थैले के अंदर which is stored in the form of work done। तो अभी F इंटू एस से फोर्स था 20 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट जो बाबू राव ने कवर किया बिफोर ही बैंग्स अगेंस्ट द वॉल से 4 मीटर का, तो मतलब कि 80 जूल का वर्क हुआ। एंड ये जो वर्क है ना, दिस इज द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विच श्याम आल्सो हैज डन विच इज बीन ट्रांसफर्ड टू दिस ठेला। ठीक, टिल द टाइम इट कम्स टू अ स्टॉप। तो 80 जूल का वर्क हुआ इस केस में, यानी कि यहाँ पे कुछ वर्क हुआ एंड देन जैसे ही वो, मतलब सिंपल सी बात है, अगर एस जीरो हो जाएगा या फोर्स जीरो हो जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हम लोग बोल सकते हैं कि श्याम ने उसको धक्का देना बंद कर दिया तो फोर्स जीरो है तो वर्क डन नहीं होगा। तब तक में क्या हुआ था, वर्क डन हो चुका था इन एनर्जी स्टोर होके, वर्क डन वाज स्टोर्ड एज एनर्जी इन दैट ठेला, और हाँ इन दैट कार्ट व्हील। ठीक, तो वो हो गया था। तो अभी 80 जूल का वर्क हो चुका है, सो ही keep on moving until he overcomes friction or he bangs himself against a wall or something else which happens in the scene as well। ठीक, तो ये क्लियर हो गया सबको, क्लियर करते हैं इसको, ठीक है। so now he'll stop when he'll bang himself against the wall which is the next scene in the movie। so now we have seen two cases। in one case Amitabh Bachchan ji did not do any work throughout the whole movie in terms of physics, and in this case Shyam did the work which was stored as energy in the theta which kept on moving, क्योंकि work done is energy stored। ये हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम में और वर्क एनर्जी रिलेशन में बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाली है आगे, उसमें भी विल रीड ऑल अबाउट दिस, ठीक है। तो now Big B, after knowing that the work done by him in the movie truly was zero, obviously he was praised so much for this movie, and after knowing that his contribution in the whole movie in terms of physics was zero, this would be his reaction। Now moving on, firstly just please reply in the chat you are getting it, you are able to relate whatever I'm saying and follow along। Okay, fine। So now we come to few more things, पॉजिटिव नेगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन, ठीक है। सो अभी जीरो वर्क डन क्या होता है कि ईदर द फोर्स इज जीरो और द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, और द थर्ड केस द एंगल बिटवीन देम इज जीरो। ठीक, एंड एक चीज और यहाँ पे सवाल दिमाग में आती है कि ये अगर बेसिक टर्म्स में देखा जाए तो वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है। ठीक, ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। सो यू माइट थिंक कि अरे इफ, मतलब व्हाई इज द फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल्स टू
एक सेकेंड यार, why is the formula work done is equals to F into S and not F plus S और F minus S और F divided by S। ठीक, तो इसको भी तुरंत तुरंत आर्बिट्री कुछ ऐसी रैंडम वैल्यूज लेके हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ने कहा है कि अगर फोर्स या डिस्प्लेसमेंट में से कोई एक जीरो है तो वर्क डन जीरो होगा ही होगा। ठीक, सो व्हाट वी कैन डू इज, फॉर एग्जांपल इफ यू आर सेइंग वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स प्लस एस, से आई हैव गिवन दिस स्टेटमेंट, आई हैव गिवन दिस फॉर्मूला कि नहीं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स प्लस डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं जीरो, तो अब क्या हो गया, वर्क डन बराबर फोर्स, यानी कि नॉट मूविंग, then also there is some work done which is taking place but which is defying the original laws, so hence proved कि ये गलत है। f डिवाइड बाई s ले लेते हैं। ठीक, f डिवाइडेड बाई s, नाउ से s इज इक्वल टू जीरो, तो अगर s इज इक्वल टू जीरो लिया तो एकदम खत्म हो जाएगा सब कुछ। ठीक, विच इज 1/0 क्या होगा, से द फोर्स इज 1 न्यूटन, इनफाइनाइट, एनी वैल्यू अपॉन जीरो इज इनफाइनाइट, which is also not against the rules, against the theorems which the great scientists have given. So work done इधर infinity हो जाएगा, which is not at all possible. Can we ever say, see, I'm sitting here, okay, and now say I'm doing something with my pen, I'm trying to move it, and there is some force, but the displacement is still zero. So if we go by this formula, F by S, the work becomes infinite. That means infinite means you know what it is, infinite, okay. सिमिलरली एफ माइनस एस ऑल्सो गोज द सेम वे। ठीक है, सो ये तो प्रूफ कर दिया हमने कि वर्क एफ इंटू एस होगा, एंड वो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा मॉड ऑफ एफ इंटू मॉड ऑफ एस कॉस थीटा। ठीक, चलो ये भी हो गया क्लियर। ठीक है, तो अब ये आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन। तो ये भी कुछ है नहीं पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन, ये बेसिकली हम लोग जो बात कर रहे थे अभी तक उसी को थोड़ा सा यहाँ पे इलाबरेट क्या है। पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, जब फोर्स जो होता है ना वो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होता है। ठीक, फोर्स जो होता है डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होता है। ठीक है, एंड फोर्स जब डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होता है तो उसको हम लोग नेगेटिव वर्क डन बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग नेगेटिव वर्क डन बोलते हैं। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन और आएगा जो कि क्विकली एकदम डिस्कस करेंगे हम लोग। ये तो समझ में आ गया पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है। नेगेटिव वर्क डन का एक केस लेते हैं, जिम जिम का केस लेते हैं। ठीक है, दिस इज अ रेसलर, अ बॉडी बिल्डर से, ही इज लिफ्टिंग सम वेट से, जितना भी है। ठीक है, सो ही इज लिफ्टिंग इट फ्रॉम 2 मीटर्स, ही लिफ्टेड इट 2 मीटर्स अबव द ग्राउंड। ये ग्राउंड है, यहाँ से 2 मीटर उठाया, यानी कि इसका ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। फोर्स ऑफ इसका, एक तो वेट का जो फोर्स है वो भी नीचे लगेगा। ठीक है, और ग्रेविटी जो नीचे लगा रही वो तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अपना बॉडी वेट भी तो उठा ही रहा है ना ये। ठीक है, कुछ तो इसका बॉडी का भी वेट लग रहा है ना नीचे की तरफ, तो उसके अगेंस्ट भी जा रहा है। तो इसका एफबीडी बनाते हैं एक बार इस रेसलर का। तो इसने जो वेट उठाया उसका वेट नीचे, इसके बॉडी का वेट नीचे, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ। तो अभी ये देखो दोनों के बीच में एंगल क्या है, 180 डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो कॉस 180 माइनस में आता है, -1। ठीक है, सो ये यहाँ से प्रूव हो गया कि नेगेटिव वर्क डन है, मतलब नेगेटिव वर्क डन। अच्छा एक चीज और, हम लोगों ने पढ़ा था स्केलर्स और वेक्टर्स में कि स्केलर्स नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कभी हम लोग ऐसा बोलते हैं क्या कि स्विगी वाले को कॉल करके बोलते हैं क्या कि मेरे, आप चौराहे से -25 मीटर आ जाएंगे तो मेरा घर मिल जाएगा आपको, या आप चौराहे से -30 मीटर आ जाइए मैं वहां पे खड़ा हूँ। कभी ऐसा बोलते हैं क्या हम लोग? स्केलर है ना ये तो, वर्क डन तो स्केलर है ना। वर्क डन को तो हम लोग हमेशा से स्केलर बोलते आए हैं, अभी जितना भी 4 स्लाइड्स पढ़ी उसमें तो ये लिखा कि वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये नेगेटिव वर्क डन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? कैन समवन टेल कि नेगेटिव वर्क डन का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों फिर, जब हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि ये तो फिर एकदम कॉन्ट्ररी चीज हो गई कि स्केलर भी है और नेगेटिव भी है। ये कैसे हो सकता है? स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, इसका केवल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता नहीं है उसका।
डिस्टेंस कभी आप स्केलर नेगेटिव बोलते हो, -20 मीटर नहीं बोलते हो कभी। इसका अगर नहीं याद आ रहा है तो एक चीज और कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे दिखाते हैं। ये क्या, शायद कहाँ गया, ओके दिस वन, हाँ। डिस्टेंस इज मेजर्ड ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये डिस्टेंस की केवल बात हो रही है, लेकिन मैक्सिमम स्केलर क्वांटिटीज को हम लोग ऐसे ही लेते हैं, नेगेटिव तो कभी बोलते नहीं कि आप -20 मीटर हो, -30 मीटर हो, कभी नहीं बोलते हैं। डू वी एवर से दैट? वी नेवर से दैट, राइट? तो ये क्या हो गया, ये तो एकदम ही ऑपोजिट हो गया फिर तो, कि नेगेटिव वर्क डन कहाँ से आ गया भैया? जब हमने तो ये क्वेश्चन पता है अभी तक, मतलब मैंने कहीं देखा नहीं है, बट शायद ये मतलब ऐसे फंसा के हो सकता है कभी आ जाए कि स्केलर है वर्क डन और नेगेटिव कैसे हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट, इस फिर ऑप्शंस बन सकते हैं, आई ट्राई टू फ्रेम अ क्वेश्चन आउट ऑफ दिस, बट ऑप्शन बन सकते हैं इसके भी। ये तो एकदम कॉन्ट्ररी चीज हो गई, एकदम ही मतलब कह रहे हो जैसे कि आपकी वर्क डन स्केलर है और नेगेटिव भी हो गया वो। तो नेगेटिव तो हमने पढ़ा ही नहीं स्केलर्स का, तो कोई प्लीज आंसर करे इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? कैन समवन आंसर दिस? फिजिक्स ऑप्शनल वाले लोग प्लीज एनलाइटन अस विथ योर नॉलेज, because I have an answer for this. I have an answer for this, but I want to know your perspective. Physics optional. What is your perspective on this particular thing or take? Cos 90 plus theta is equals to minus sin theta. ठीक है, that is fine. But minus sin theta, it's fine. But I am asking Shubham, you have to listen to the question once again. I am asking कि नेगेटिव वर्क क्यों होता है, नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट ही कैसे आ गया? जब स्केलर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो स्केलर्स में क्या होता है, विच हैव ओनली द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो उसमें आता नहीं कि हम लोग कन्वेंशंस बनाएंगे। ठीक, कन्वेंशंस बनाएंगे ना हम लोग, उसमें कन्वेंशंस लेते हैं ना, वेक्टर्स में क्या कन्वेंशंस लेते हैं ना, कि अगर ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव। Negative value of scalar, okay, Shruti has finally answered. Negative value of scalar does not imply direction. Temperature is also scalar but can take negative values. Yes, kind of fair, kind of the answer I was expecting. Good, Shruti. Exactly what I was trying to say. ठीक, कि यहाँ पे सी टेम्परेचर का, जैसे कि she has created an analogy between temperature and scalar quantities. टेम्परेचर भी स्केलर होता है, ठीक, बट नेगेटिव में आ सकता है, ठीक है, जीरो के नीचे आएगा, नेगेटिव में आएगा, एक नंबर लाइन पे हम लोग लेते हैं, ठीक। एंड बेसिकली यहाँ पे जो बात हो रही है ना, सो यू कैन इन द टर्म्स ऑफ दिस वर्क डन आल्सो यू कैन सी कि वहां पे दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। दो वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर्स में हम लोग डायरेक्शन हमेशा काउंट करते हैं, ठीक है। वेक्टर्स में हम लोग डायरेक्शन हमेशा काउंट करते हैं, तो चलो हमने ये भी कर देते हैं कि हम डॉट प्रोडक्ट में हम उसका मॉड ले लेते हैं, उस वेक्टर का मॉड, मॉड मतलब केवल पॉजिटिव लेंगे उसका हम लोग, अगर वो नेगेटिव भी है, अगर -2 सपोज एक्स एक्सिस पे है, -2 आई कैप, मतलब आई कैप बता, आई टेल यू लेटर क्या होता है, यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो अगर -2 है और ये माइनस कुछ उसमें है, तो इसका मॉड लेते हैं हम लोग, अंडर रूट करके निकालते हैं स्क्वायर करके इसको, ठीक है। तो उसका मॉड लिया तो वही पॉजिटिव हो गया, बट जो एंगल होगा दो वेक्टर्स के बीच में, वो तो कोसाइन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का तो फॉर्मूला ही है कि वो कोसाइन पे डिपेंड कर रहा है। तो हो सकता है अगर cos थीटा मान लो 180 है, cos थीटा 180 है, इधर एक फोर्स है, इधर एक डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो -1 तो आएगा फिर वो, तो फाइनल आंसर में तो माइनस ही दिखेगा हमको। तो वर्क डन हम बोलते हैं कि नेगेटिव है, बट अब उसका कॉन्सेप्ट क्या है, आई टेल यू। ये जो नेगेटिव वर्क डन की बात हो रही है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि स्केलर क्वांटिटी को हम नेगेटिव बना दे रहे हैं, एज श्रुति हैज मेंशन्ड कि वैसे तो टेम्परेचर भी स्केलर होता है बट नेगेटिव वैल्यूज लेता है। तो इसका मतलब क्या कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्केलर डज नॉट इम्प्लाई डायरेक्शन, एकदम सही, डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है हमको यहाँ से। नेगेटिव वर्क डन का मतलब होता है कि हम लोग किसी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं,
ठीक, किसी के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो नेगेटिव वर्क डन कैसे हो रहा है इस केस में? कैसे? बॉडी बिल्डर वाले केस में, आई ड्रॉ इट वंस अगेन। बॉडी बिल्डर वाले केस में क्या हो रहा था? ये वेट, ये वेट, अब ये वेट जब उठा रहा है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट उठा रहा है वेट को। ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट वेट को उठा रहा है। डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है इसका, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है। तो उस केस में अकॉर्डिंग टू आर थ्योरम्स, आर दिस वेक्टर प्रोडक्ट, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट, आर डॉट प्रोडक्ट विच वी कैन से, ठीक, उसके हिसाब से वो जो फॉर्मूला बना है, दैट इज नेगेटिव वर्क डन। वर्क डन नेगेटिव नहीं हो रहा है, इट इज जस्ट शोइंग कि दो फोर्सेस हैं जो कि ऑपोजिट में जा रहे हैं, तो उनके बीच का एंगल 180 होगा, तो कोसाइन पे डिपेंड करता है, तो वो नेगेटिव हो रहा है। तो नेगेटिव मतलब वही होगा कि हम किसी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। जैसे कि हम कन्वेंशन में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था कि अगर किसी के अगेंस्ट जा रहा है तो आप नेगेटिव बन जाते हो, और किसी को आप अपोज करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव बिहेवियर दिखाता है आपका थोड़ा सा, मतलब सामने वाला यही सोचता है। तो वही चीज है यहाँ पे, वो टेम्परेचर वाला एनालॉजी एकदम सही है। टेम्परेचर भी तो नेगेटिव होता है, बट वो तो स्केलर है। यही चीज वर्क डन में भी है। वर्क डन भी आपका हो रहा है, स्केलर है, बट नेगेटिव वो चीज नहीं हो रही जो कि आपको लग रहा है कि अरे ये नेगेटिव कैसे हो गया। तो ये मिसनोमर है थोड़ा सा, ये टर्म मिसनोमर इसको बोल सकते हैं कि वर्क डन भी है और नेगेटिव भी है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। बट नेगेटिव का मतलब यही है, नेगेटिव अगर आंसर आ रहा है, सपोज कुछ नहीं पता है आपको, ठीक है, और अगर आपको डायरेक्टली बोल दे कि वर्क डन इज -40 जूल्स, सो टेल, ठीक, कि व्हाट काइंड ऑफ अ वर्क डन इज दिस, जीरो, या फिर जीरो तो बिल्कुल नहीं है, दिख रहा है, पॉजिटिव भी नहीं हो सकता, नेगेटिव है। एंड विद वर्क डन इज बीइंग डन अगेंस्ट समथिंग, अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो है, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है या फिर किसी भी फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है, नॉट ओनली ग्रेविटी। मान लो अगर एक ट्रक है, ठीक, वो उस पे फोर्स नहीं, ऐसे नहीं करते हैं, अच्छा ठीक है, ट्रक वाला एग्जांपल छोड़ो, उसको एग्जांपल लो, नॉर्मल ग्रेविटी वाला एग्जांपल लो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स नीचे, तो ये 180 डिग्री का एंगल, ये माइनस इसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। बेसिकली देखो, आ रहा है वो फोर्सेस की वजह से ही, वर्क डन कभी भी हमारा उसमें नहीं जा रहा है, लेकिन ये फोर्सेस की वजह से नेगेटिव हो जा रहा है, ठीक। तो ये एक मिसनोमर टाइप का है एंड कैन बी यूज टू कंफ्यूज पीपल कि स्केलर और नेगेटिव कैसे। तो बस ये याद रखना कि टेम्परेचर भी नेगेटिव में जाता है, बट ये नहीं कहते हम लोग कि टेम्परेचर वेक्टर हो गया है, ठीक है। दैट इज द एनालॉजी विच श्रुति has given. Thank you, Shruti, for giving such a good example. If you want to note anyone, then please you can just write that temperature is kind of similar to the work done in this case. So it's 3 and I think we are done for the day, क्योंकि अब ये चैप्टर 2-3 सेशन और चलाते हैं, थोड़ा सा इसको और एनालाइज करते हैं, तो इसीलिए आज ज़्यादा आई हैव नॉट एडेड थिंग्स इनटू दिस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन प्लीज डू। अच्छा, शुभम हैज सम क्वेश्चन, लेट मी जस्ट सी। It means initially negative work is also done by pulley while pulling back as it is against, yes, 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 correct, correct, एकदम करेक्ट। जब वो बैग को उठा रहा है ना, यू आर सेइंग शुभम, यू आर सेइंग दैट व्हाइल द पुली स्टैंडिंग एंड वो बैग से, बैग को ग्राउंड से उठा के ऊपर ले जा रहा है, ठीक है, दैट यू आर सेइंग, राइट, है ना? That is yes, that then it is negative work. But when he is holding the bags above his head on a cloth एंड जब मूव कर रहा है, देन यू योर सेल्फ इमेजिन कि अभी बैग और उसका कंबाइंड वेट नीचे है, डिस्प्लेसमेंट आगे जीरो हो गया, वर्क डन, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस you have my number on Telegram and the group as well. Just ask the questions here. Thank you everyone. Goodbye. Have a good day.